Greetings of the day. This is Santosh Madan, your EVS teacher of class 5th from Balbharti Vidyapit, Gohana. Dear students, today we are going to start class 5th, unit 1, organ systems. Students, before starting our today's topic, I want to ask from you, what are organs? The body parts which perform a specific function in our body are called organs. Now come on, organ system. A group of organs working together to perform a series of functions in our body is called an organ system. जब ऑर्गन का पूरा ग्रुप मिलकर हमारी बॉडी के अंदर एक सीरीज के अंदर फंक्शन परफॉर्म करता है तो उसे हम organ system कहते हैं. There are 7 main organ system in the human body. First, nervous system control our body by sending and receiving signals and information throughout the body. Nervous system हमारी बॉडी में मैसेज और सिग्नल्स को सेंड करने का और जो है रिसीव करने का फंक्शन करता है. डाइजेस्टिव सिस्टम टर्न्स फूड दैट वी ईट इनटू न्यूट्रिएंट्स विच गिव अस एनर्जी. डाइजेस्टिव सिस्टम फूड को न्यूट्रिएंट्स में कन्वर्ट करता है जो कि हमें एनर्जी देता है. रेस्पिरेटरी सिस्टम brings in oxygen and let out carbon dioxide from our body. रेस्पिरेटरी सिस्टम हमारी बॉडी में ऑक्सीजन को लेकर जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर लाता है. सर्कुलेटरी सिस्टम डिलीवर्स ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स टू एंटायर बॉडी थ्रू ब्लड. सर्कुलेटरी सिस्टम ब्लड के द्वारा ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स को हमारी बॉडी में डिलीवर करता है. एक्सक्रिएटरी सिस्टम रिमूव्स वेस्ट फ्रॉम द बॉडी. एक्सक्रिएटरी सिस्टम हमारी बॉडी से वेस्ट को रिमूव करता है. स्केलेटल सिस्टम प्रोवाइड द स्ट्रक्चर टू सपोर्ट आवर बॉडी एंड प्रोटेक्ट इनर ऑर्गन्स. स्केलेटल सिस्टम हमारी बॉडी को स्ट्रक्चर और सपोर्ट देता है और हमारे इंटरनल ऑर्गन की प्रोटेक्शन करता है. Muscular system aids the movement of our body and of blood and food inside our body. Muscular system हमारी बॉडी की मूवमेंट में हेल्प करता है और हमारी बॉडी के अंदर ब्लड और फूड को मूवमेंट करने में हेल्प करता है. Now come on, circulatory and digestive systems. We have learnt about circulatory and digestive systems in previous classes. Let us revise the main points about these two systems. Circulatory system. The circulatory system moves blood around the body. Blood carries oxygen and nutrients to all parts of the body and brings back carbon dioxide and waste from all parts. The main organs of the circulatory system are the heart, arteries and veins. Students, what are the main organs of the circulatory system? The main organs of the circulatory system are heart, arteries and veins. And what is the function of the circulatory system? The circulatory system helps to deliver oxygen and nutrients to all parts of the body and take back carbon dioxide from the cells to the lungs. Digestive system. Digestive system helps to convert food that we eat into nutrients that our body uses and removes waste material from our body. The main organs of the digestive system are the mouth, esophagus, stomach, small intestine
large intestine, and rectum. Students, what are the main organs of the digestive system? The main organs of the digestive system are stomach, esophagus, mouth, small intestine, large intestine, and rectum. And what is the function of the digestive system? The digestive system helps to take in the food we eat and convert it into nutrients for our body and remove waste product from our body. Now come on, skeletal system. The skeletal system is a collection of bones arranged together to provide a certain shape and structure to our body and to hold it together. स्केलेटल सिस्टम में जो है बोन का कलेक्शन होता है और वो इस प्रकार से टुगेदर अरेंज हैं कि वो हमारी बॉडी को शेप और स्ट्रक्चर देती हैं और इसे होल्ड करके रखती हैं. एट द टाइम ऑफ बर्थ देयर आर 270 bones, but some fuse together as we grow. In an adult body, there are 206 bones in the human skeletal system. Students, जब बच्चे का बर्थ होता है तब उसकी कितनी बोन्स होती हैं? 270 बोन्स होती हैं. परंतु जैसे जैसे वो बच्चा बड़ा होता जाता है तो कुछ बोन्स जो है टुगेदर ज्वाइंट हो जाती हैं और लास्टली जो अडल्ट बॉडी है उसमें जो है 206 बोन्स होती हैं. तो ह्यूमन के स्केलेटल सिस्टम में 206 बोन्स होती हैं. पार्ट्स ऑफ द स्केलेटल सिस्टम. The skeletal system is made of bones and joints. Some of the main bones of the skeletal system are skull, backbone, rib cage, limbs, shoulder and hip girdle. Skull. The bone structure of our head is known as the skull. The skull is made up of 22 bones. स्टूडेंट्स, अब ये भी आपने डायग्राम के अंदर देखा. तो ये क्या है बच्चे? ये जो हमारा स्कल है, ये जो है ये क्या है बेटे? हमारा स्कल है. इसके अंदर ये क्या है? हमारा हेड का स्ट्रक्चर है और ये इसके अंदर कितनी बोन्स होती हैं? 22 बोन्स होती हैं. 22 बोन्स होती है स्कल के अंदर और ये हमारी हेड का स्ट्रक्चर है. ओके. 8 bones protect the brain and the remaining 14 bones make up the face. Only the lower jawbone, also known as the mandible, is movable. We eat food and talk using the mandible. तो अब इसके अंदर कितनी बोन्स हैं? 22 बोन्स हैं. स्कल के अंदर कितनी बोन्स हैं? 22 बोन्स हैं, जिसमें से 8 बोन क्या करती हैं? हमारे जो है ब्रेन की प्रोटेक्शन करती हैं और 14 बोन्स हमारे फेस को बनाती हैं. 14 बोन्स हमारे फेस के अंदर है. ओके. और इसमें से जो आपका लोअर जो है, लोअर जो की बोन है वो क्या है? मूवेबल है. उसे ही हम मैंडिबल कहते हैं. उसका यूज़ करके हम क्या करते हैं? फूड को ईट करते हैं और टॉक करते हैं. नेक्स्ट, बैकबोन. द बैकबोन, also known as the spine, is found in the middle of our back. It is made up of 33 small bones called vertebrae. They form a column called the vertebral column. The vertebral column or backbone connect our upper body to the lower body. अब जो बैकबोन है उसको हम क्या कहते हैं? बैकबोन को हम स्पाइन भी कहते हैं. और ये कहाँ पर होती है? हमारी बैक के बिल्कुल मिडल में होती है. इसके अंदर कितनी बोन्स है? 33 बोन्स है. 33 स्मॉल बोन्स हैं जिसे हम वर्टिब्रे भी कहते हैं. और ये जो एक कोलम के अंदर होती हैं जिसे वर्टिबल कोलम कहते हैं. जो वर्टिबल कोलम या फिर बैकबोन है वो क्या करते हैं? हमारी अपर बॉडी को लोअर बॉडी के साथ कनेक्ट करता है. यूज द बैकबोन सपोर्ट्स our entire body and is a very important set of bones.
inside the vertebrae are hollow and the spinal cord passes through them. बैकबोन हमारी जो एंटायर बॉडी है उसको क्या देता है, सपोर्ट देता है, इसलिए ये हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट बोन्स है. तो इसमें जो वर्टिब्रे होता है वो वर्टिब्रे की जो बोन्स है वो होलो होती है और स्पाइनल कोड जो है उसके अंदर से जाता है. नेक्स्ट, रिब केज. द रिब केज is a cage-like structure starting from below the shoulders and ending at the waist. It is formed by 12 pairs of bones called ribs. जो रिब केज है वो एक केज की तरह स्ट्रक्चर है और ये कहाँ से स्टार्ट होता है, ये हमारी जो है शोल्डर्स के नीचे से स्टार्ट होता है और जो है इसका एंड कहाँ पर होता है, वेस्ट पर इसका एंड होता है. इसके अंदर 12 पेयर ऑफ बोन्स होती हैं जिसे रिब्स कहते हैं. द रिब्स आर अटैच्ड टू द स्टर्नम इन द फ्रंट एंड टू द बैकबोन एट द बैक. द लास्ट 2 पेयर्स ऑफ द रिब्स आर अटैच्ड ओनली टू द बैकबोन एंड नॉट टू द स्टर्नम. दे आर नोन एज फ्लोटिंग रिब्स. जो इसमें रिब्स है वो फ्रंट में स्टर्नम से अटैच है और बैक में बैकबोन के साथ अटैच है. और जो लास्ट के 2 पेयर्स रिब्स के जो लास्ट के 2 पेयर्स है वो जो है स्टर्नम के साथ अटैच नहीं है, वो ओनली बैकबोन के साथ अटैच है और उसे हम फ्लोटिंग रिब्स भी कहते हैं. यूजेस. The rib cage protect important organs like heart, lungs and the blood vessel as well. What is the function of the rib cage? The rib cage protect important organs like heart and lungs and the blood vessel as well. Limbs. The arms and legs are known as limbs. Arms और legs को क्या कहते हैं? Limbs. Arms are known as forelimbs and legs are known as hind limbs. Arms को forelimbs और legs को hind limbs कहती है. At the ends, arms have hands and fingers while legs have feet and toes. Arms के end में क्या होती है? Hands और finger. और जो आपका legs है, legs के end में क्या होती है? Feet और toes. The thigh bone, also called the femur, is the longest bone in our body. जो हमारी थाई की बोन है उसे हम फीमर कहते हैं और वो हमारी सबसे लॉन्गेस्ट बोन है. यूज आवर लिम्स हेल्प इन मूविंग आवर हैंड्स एंड लेग्स, डूइंग वर्क, वॉकिंग, पिकिंग अप थिंग्स एंड राइटिंग. ओके. गर्डल. अ गर्डल इज अ बोन और बोन्स कनेक्टिंग अ लिम्ब टू द सेंट्रल स्ट्रक्चर ऑफ आवर बॉडी. गर्डल भी एक बोन है या फिर बोन्स जो कि लिम्स और सेंट्रल स्ट्रक्चर के साथ कनेक्ट है. द 2 गर्डल्स फाउंड इन द ह्यूमन बॉडी आर. ह्यूमन बॉडी के अंदर कितने गर्डल्स होती हैं? 2 गर्डल्स होती हैं. फर्स्ट, पेक्टोरल गर्डल, शोल्डर गर्डल. इट कनेक्ट्स द 4 लिम्स टू द सेंट्रल स्ट्रक्चर ऑफ द रिब केज एंड द बैकबोन. अब जो शोल्डर गर्डल है उसका साइंटिफिक नेम क्या है? पेक्टोरल गर्डल. ये क्या करता है? ये जो हमारे 4 लिम्स जो हमारे 4 लिम्स को सेंट्रल स्ट्रक्चर ऑफ द रिब केज के साथ कनेक्ट करता है. अब 4 लिम्स में क्या आती हैं बेटा? हमारी आर्म्स, हैंड्स. ओके. सेकेंड, पेल्विक गर्डल, हिप गर्डल. इट कनेक्ट्स द हिंड लिम्स टू द सेंट्रल स्ट्रक्चर ऑफ द रिब केज एंड बैकबोन. अब सेकेंड गर्डल कौन सा है? हिप गर्डल और उसका साइंटिफिक नेम क्या है? पेल्विक गर्डल. ये क्या करता है? हमारे हिंड लिम्स को सेंट्रल स्ट्रक्चर, रिब केज और बैकबोन के साथ कनेक्ट करता है. हिंड लिम्स कौन सी होती है? हमारी लेग्स, फीट और टोस. ओके. यूज. दे हेल्प इन मूवमेंट एंड प्रोटेक्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गन.